Hello everyone, this is Professor Muhammad Hassan Khan, and today we are going to start a course which is Managerial Accounting and Control System. Before starting this course, I just want to tell you people that this course is mainly related with the industrial organization, and not only the industrial organization but also it related with the manufacturing businesses and service sector. And first of all, we should know that why are we studying this course. So the first thing that we study this course this course especially help us to know that how a manager just in an organization, in like in manufacturing or in or service providing company, that he can easily get some decision making help, and with that decision making, and how he just put his role for making the company make the company to the progress level. So in this course we mainly this course basically related with the two courses. That is, first of all, it is related with the financial accounting, and secondly this course related with the cost accounting. So before wasting the time, we just move to the topic, and we start our chapter, that is chapter number 1, and that's the introduction to the managerial accounting. And this is our course content, or the chapter number 1 things that topics that we are going to discuss, in which we are going to know the introduction, definition, activities involved in managerial accounting, and steps involved in managerial accounting. Second, we just came to know difference between managerial accounting and financial accounting, difference between the cost accounting and managerial accounting, and each and everything we're just going to discuss one by one. So first of all, move with the introduction. So I just also just try to use some Urdu words, and just as well as just deliver my lecture in English. So most of my people and most of my students they understand English, and most of them they can easily understand the lecture while giving example in Urdu. So I just try to make both language, just try to help deliver this lecture in the both language. So let's move with the definition that an organizational resource are limited in supply where demands is unlimited. So managers are required to take best decisions regarding utilization of material, expense, inventory, assets, etc. So what it tells us, that introduction to managerial accounting, the definition, like it's saying that if I talk in Urdu, like in किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें उसके अंदर, तो मैनेजर अकाउंटिंग हमें इस तरीके से हेल्प आउट करती है कि हमारे पास जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इन्वेंटरी मौजूद है, जो भी चीज़ें रिसोर्सेज जो मौजूद हैं, उनके होते हुए आप जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आपकी डिमांड आ रही है, उसको पूरा फुलफिल करना, तो वो एक जिम्मेदारी होती है एक मैनेजर की. सो मैनेजरियल अकाउंटिंग से हमें ये थोड़ा सा चीज़ों को क्लियरिफाई फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल द एंड, इसमें काफ़ी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक मैनेजर को हेल्प होगी उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बूस्ट अप करने के लिए, उसकी जो भी डिसीजन मेकिंग के लिए, और उसको कोई भी इश्यूज आ रहे हैं लाइक प्रोडक्शन में और डिफरेंट सिनेरियोज हैं, तो उसकी जो भी यूटिलाइजेशन है और उसका एक्सपेंस, इन्वेंट्री, एसेट्स, सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे. अच्छा जी, और इसका एक चीज़ है कि लाइक रिक्वायर टू टेक द बेस्ट डिसीजन रिगार्डिंग, जो भी बेस्ट डिसीजन मेकिंग होगी और उसके मैनेजर की इन चीज़ों से रिलेटेड, तो हमें इस चीज़ के अंदर मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर में चीज़ें पढ़ेंगे. सेकंड डेफिनेशन पे मूव करते हैं. फॉर दीज रीजंस, इन रीजंस की वजह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी एनालाइज, regrouped and looked into depth. तो इस पे हम काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, और उसकी इसी वजह से हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं और इसको रीग्रुप करते हैं, और काफ़ी डीप में इसके बारे में आगे बात करते हैं. थर्ड में बात करेंगे, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ यूजफुल ओनली टू एक्सटर्नल पार्टीज. अच्छा जी, एक बात करेंगे मैनेजर अकाउंटिंग जो हमें जो स्पेशली हेल्प करती है वो इंटरनल
जो भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करती है, जबकि फाइनेंशियल जो भी अकाउंटिंग होती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होती हैं हमें हेल्प कर रही होती हैं, स्पेशली लोगों का कौन किन को हेल्प कर रही होती हैं, इज़ यूजफुल ओनली फॉर द एक्सटर्नल पार्टीज एंड द इंफॉर्मेशन एज गिवन बाय दीज स्टेटमेंट नीडेड टू बी मेंड एंड रीग्रुप फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो जो हमें जो मैनेजरियल अकाउंटिंग की वजह से जो हमें जो हेल्प आउट हो रहा होता है उसके जरिए से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डिफरेंट चीज़ें को देखते हुए और उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो हम एक मैनेजरियल डिसीजन बना रहा होता है, मैनेजर्स को चीज़ों को देखते हुए डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, स्पेशली अगर क्लेरिफाई करूं तो इस चीज़ को मैं समराइज करूं तो मैनेजरियल अकाउंटिंग और जो हेल्प कर रही होती है द बेस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए उनकी रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करते हुए और उनकी जो एक्सपेंस इन्वेंट्री एसेट्स को यूज़ करते हुए, तो ताकि मैनेजर्स को हेल्प आउट हो सके, उनको डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो सके। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं उसकी डेफिनेशन के अंदर कि डेफिनेशन क्या है। Managerial accounting is concerned with providing information primarily to managers for their use internally। यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं internally, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी प्राइमरी इंफॉर्मेशन। अब जो हमारे पास हमारे पास जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स आती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, वो एक्सटर्नल बेसिकली इसके लिए हमारे पास हेल्प आउट होती है, जबकि जो हमारे पास मैनेजर अकाउंटिंग होती है वो हमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी मैनेजर्स फॉर टेकिंग इंफॉर्मेशन उसको प्राइमरी तौर पर उसको यूज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यूज इंटरनली इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ स्ट्रेटजी planning and implementation and control. Financial accounting is concerned with providing information primarily to investors, creditors and other outsiders of the organization. Managerial accounting उसको प्राइमरी और इंटरनली हेल्प आउट कर रही होती है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कंसर्न हो रही होती है, जो इंफॉर्मेशन दे रही होती है इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को एंड अदर आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन की जो भी मेंबर्स होते हैं उनको दे रही होती है। नेक्स्ट बात करेंगे डेफिनेशन। हमारे पास एक और डेफिनेशन है। मैनेजर अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मालूम करना होती है, एक प्रोसेस है, आइडेंटिफाई होती है, हमें उससे मेजरिंग कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रिटेटिंग कर सकते हैं, इंटरप्रिटिंग कर सकते हैं एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन इन परस्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गोल। ठीक है, ये हमें इन चीजों पे हेल्प आउट कर रही होती है। इन परस्यूइंग इट्स गोल्स एन ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर्स रिसोर्सेस, hire people and then engage in an organized set of activities. It is up to the management team to make the best use of the organization resources, activities and people in achieving the organization goals. ठीक है, the day-to-day work of the management team comprises 4 activities. अच्छा, इस चीज को मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ। ये मैनेजर अकाउंटिंग की वजह से क्या हो रहा है, इन परस्यूइंग गोल, हमें गोल्स को अचीवमेंट के लिए हेल्प कर रही होती है। ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स रिसोर्सेज। अच्छा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी रन हो रही होती है उसको रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को हायर कर रही होती है और उनको इंगेज करती है, और उनके जो भी जेडीज, उनके जो भी वर्क के अंदर उनको और उनको जो भी जेडीज को डिस्क्राइब करके उनको उसमें इंगेज कर रहे होते हैं। सही है। इट इज अप टू द मैनेजमेंट टीम टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। डिपेंड करता है उनके मैनेजमेंट के ऊपर कि किस तरीके से उसके रिसोर्सेज को वो बेस्ट यूज करें। एक्टिविटीज एंड पीपल इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। डे टू डे वर्क ऑफ द मैनेजमेंट टीम कंप्राइजेस 4 एक्टिविटीज। अच्छा जी, कौन कौन सी 4 एक्टिविटीज जो मैनेजमेंट की जो होती हैं। अच्छा, हमारा दूसरा एक टॉपिक स्टार्ट हो गया, एक्टिविटीज इन्वॉल्व मैनेजरियल अकाउंटिंग। Essentially, the managers carries out 3 major activities in an organization. कौन कौन सी 3 मेजर एक्टिविटीज जो मैनेजर्स जो कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग। कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमारे पास प्लानिंग होती है। सेकंड, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा होता है। थर्ड, हमारे पास जो चीज हो रही थी दैट इज कंट्रोल। ठीक है, ऑल दीज 3 एक्टिविटीज इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग
एंड यूज ऑफ मैनेजर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हो रही होती है, कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके बाद में पहले प्लानिंग हो रही होती है, फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर उस पर जो भी कंट्रोल्स को जो भी वर्किंग उसका रिजल्ट जो होता है, ठीक है, कंट्रोल्स पे किया जाता है। तो ये हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा जी, लाइक स्टेप्स इन्वॉल्व के क्या क्या स्टेप्स हो रहे होते हैं मैनेजर अकाउंटिंग के अंदर, और किस तरीके से एक इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। सबसे पहले हमने बात करी थी पीछे हमारे पास प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल। अच्छा जी, अब यहाँ पे स्टेप्स को थोड़ा सा और हमने बात करी है, थोड़ा डिफाइन करके बात करी है। द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। इन तीनों के भी अपने अपने स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मुलेटिंग प्लान्स विच ऑफन इंक्लूड्स प्रिपेयरिंग बजट्स। जो भी हमारे पास प्लान हो रहे होते हैं, प्लानिंग हो रही होती है, जो हमें ऑफन इंक्लूड, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ रही होती है प्लानिंग के अंदर, प्रिपेयरिंग बजट्स। सही। सेकंड बात कर रहे हैं ओवरसीइंग डे टू डे एक्टिविटीज विच इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल। इंप्लीमेंटेशन में बात करेंगे, हमें ऑर्गेनाइजिंग करना होगा, डायरेक्टिंग करना होगा एंड मोटिवेटिंग पीपल जो हमें करना होगा। रिसोर्सेस को एलोकेशन एंड डिसीजन मेकिंग में हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, जो हमारे इंप्लीमेंटेशन में सारी चीज़ें आ रही होती हैं। थर्ड चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे है दैट इज कंट्रोल साइकिल, जो यहाँ पे हमने बात करी है, जिसमें क्या है कंट्रोलिंग विच इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग फीडबैक वेयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। कंट्रोल किस तरीके से हमें जो भी चीज़ कर रहे होंगे, किस तरीके से हमें पता चलेगा भाई ये चीज़ हमारे पास सही परफॉर्म हो रही है, हमें क्या होगा उसकी परफॉर्मेंस से, सबसे पहले परफॉर्मेंस के थ्रू हमें पता चलेगा, और सेकेंडली हमें उसकी जो भी फीडबैक और उसकी जो भी रिपोर्ट्स के जरिए हमें चीज़ों का पता चलेगा कि जो चीज़ें हमने न्यू चीज़ हमने जो इम्प्लीमेंट करी है, जो चीज़ हमने लेकर आए हैं, तो वो चीज़ हमें इन चीज़ों से लाइक उसकी फीडबैक से और उसकी परफॉर्मेंस से पता चलेगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कंट्रास्ट बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजरल अकाउंटिंग। क्या कंट्रास्ट दोनों का आपस में बात करते हैं। इन कंट्रास्ट टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरल अकाउंटिंग, ये हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजर अकाउंटिंग है। क्या कंट्रास्ट, सबसे पहले बात करेंगे फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ द मैनेजर्स। ये हमें क्या, एक मैनेजर की हमें क्या फोकस कर रही होती है उसकी नीड्स के लिए। सेकंड, प्लेसेस मोर एम्फेसाइज ऑन द फ्यूचर, हमें फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा एम्फेसाइज बता रही होती है, चीज़ों को हमें ऑर्गेनाइज करा रही होती है कि क्योंकि हर कंपनी का अपना डिसीजन मेकिंग उसके पास रिकॉर्ड से और उसके फ्यूचर को बेटर करने के लिए होता है। फ्यूचर को बेटर है, उसके प्रेजेंट से फ्यूचर को बेटर करेगा, ठीक है। उसकी जो भी फ्यूचर की प्लानिंग होगी कि हमें अगर लाइक हमारे पास लास्ट ईयर हमारा हम ग्रोथ में गए हैं या हमारे लॉस में गए हैं, तो उस लास्ट 3 या 4 5 ईयर के डेटा से उसको थोड़ा सा अपने आप को रियलाइज कर रहे होते हैं कि उनकी जो फ्यूचर में जो आगे वर्किंग होगी उसको किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट होगा। थर्ड बात कर रहे हैं एम्फेसाइजेस रेलेवेंस एंड टाइमलाइंस रेदर देन वेरिफिएबिलिटी एंड प्रिसीजंस। लाइक जो भी टाइमलाइंस उनकी है और जो भी लाइक डिसीजन मेकिंग में जो इसका यूजेज हो रहा है वो उसको थोड़ा सा इसमें हेल्प आउट करेगा। फोर्थ थिंग बात करेंगे एम्फेसाइजेस द सेगमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन को किन सेगमेंट्स में उन्होंने एम्फेसाइज करा है और किस तरीके से उन्होंने किस सेगमेंट्स में डिवाइड करा है। अच्छा, एक और बात बोल रहे हैं कि नंबर 4 के अंदर is not governed by IFRS, that is the International फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। गवर्न नहीं हो रही होती है मैनेजर अकाउंटिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के, क्यों? क्योंकि हमारे पास या तो इस पे भी नहीं होती और ना ASPE विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज एंड नॉट मैंडेटरी। तो इसमें लाइक जो भी, क्योंकि हम मैनेजर अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, मैनेजर बेसिकली अकाउंटिंग हमारे पास, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, हमारे पास इंटरनल यूजेज के लिए हो रही होती है, हेल्प कर रही होती है मैनेजर्स को उनके डिसीजन मेकिंग के लिए और उनके फ्यूचर्स को, जो भी कंपनी के फ्यूचर लाइक बेनिफिट्स, उनके फ्यूचर हेल्थ के ऊपर वर्किंग करने के लिए हमें हेल्प आउट हो रही होती है। अच्छा जी, थोड़ा सा ये कंट्रास्ट बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजर अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा एक बताया गया है कि इसका प्राइमरी यूज़ क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का,
मैनेजमेंट अकाउंटिंग और जब मैनेजर अकाउंटिंग के अंदर क्या है, थोड़ा सा हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। लाइक हमारे पास पर्पस, इंफॉर्मेशन, टाइमलाइंस, रिस्ट्रिक्शंस, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, स्कोप्स, बिहेवियर, इम्प्लीकेशंस हो गया, फीचर्स आ गया, सेगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। एक दो को हम थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ में कोर्स में देखना है, तो हम आगे मूव ऑन हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें एज कम्पेयर टू मैनेजर अकाउंटिंग, तो हमारे पास क्या है, एक्सटर्नली इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, क्रेडिटर्स, हमारे पास इनके लिए बेसिकली यूजेज हो रही होती है। इंटरनली यूज होता है मैनेजर्स के लिए, मैनेजर्स ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉयज, इनके लिए ये हेल्प आउट हो रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे हेल्प इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर्स मेक इन्वेस्टमेंट्स, क्रेडिट एंड अदर डिसीजन, उसके लिए हो रहा होता है। और सेकंड बोल रहा है कि हेल्प मैनेजर्स प्लान, इनके लिए हेल्प कर रहा होता है और ये इनको इस मैनेजर्स को हेल्प कर रहा होता है। इस साइड पे ये इन्वेस्टर जिन लोगों को हेल्प आउट कर रहा होता है, इस साइड पे ये और उनको हेल्प आउट कर रहा होता है। तो खैर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, डिफरेंस है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। हमारे पास एक ऊपर जो हमारे पास था फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज मैनेजर अकाउंटिंग का डिफरेंस था। और अब जो बात करेंगे हम कॉस्ट अकाउंटिंग और वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजर अकाउंटिंग के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास मैनेजर अकाउंटिंग और के अंदर ही एक तरीके से देखा जाए ये एक पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी देखेंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग की भी देखेंगे, ठीक है। तो अच्छा, बात कर रहे हैं हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल लाइक मैनेजर अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होती है, बेसिकली द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ कॉस्ट डेटा of an organization is known as cost accounting. Sorry, जो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग डेटा लाइक होता है उसको समराइज का और कॉस्ट समराइजिंग ऑफ कॉस्ट डेटा, सही है, ऑर्गेनाइजेशन का, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहा था, जो भी कॉस्टिंग के अंदर चीज आ रही होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजर अकाउंटिंग में क्या चीज होती है, अकाउंटिंग इन विच द बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड टू मैनेजर्स इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल चीज़ें मौजूद हो रही होती हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव पे बात करता है, ये हमें दोनों चीज़ें बताता है, लाइक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों चीज़ें पे हमें ये हेल्प आउट कर रहा होता है। तो अच्छा जी, इंफॉर्मेशन टाइप के ऑब्जेक्टिव क्या है इसका भाई, ascertainment of cost and of production, ये बात कर रहा है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स टू सेट गोल्स एंड फोरकास्ट स्ट्रेटजीज, ठीक है। खैर ये स्कोप क्या है आप भी पढ़ सकते हैं, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, रिकॉर्डिंग, प्लानिंग एंड इंटरप्रेटेंसी, जो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वही अब तीनों का आपस में कंपैरिजन हमें बता रहा है कि इसके अंदर डिफरेंशिएट क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, लास्ट में जो हम पढ़ रहे हैं जो कोर्स के अंदर हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग चीज़ें हैं, तीनों का डिफरेंस बता रहा है। तो सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ लेता हूँ, तो ऑब्जेक्टिव से थोड़े से में और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बात कर चुके हैं रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस एंड डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशंस एंड प्रॉफिट और लॉस के बारे में बता रहा होता है। सेकंड बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ascertainment, allocations, accumulations and accounting for cost। कॉस्ट की जो भी चीज़ें हमारे पास हो रही होती हैं वो हमें यहाँ पे इसको समराइज करना है डेटा को, या जो भी कॉस्टिंग आ रही है उसके बारे बात करने के लिए ये चीज़ हेल्प आउट कर रहा था कॉस्ट अकाउंटिंग। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजर अकाउंटिंग हमें हेल्प आउट कर रहा होता है मैनेजर डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, क्या कौन कौन सी फॉर्मुलेशन पॉलिसी की इंप्लीमेंट करना है या जो भी डिसीजन मेकिंग करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, आई थिंक ये वही थोड़ी सी इसी के आगे कोई चीज़ रिपीट हो गई है। खैर बात करते हैं कुछ हमारे पास छोटी सी डेफिनेशंस है, फिर हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, जिसमें हमारे पास कुछ डेफिनेशंस है। लाइक फर्स्ट वी हैव जस्ट इन टाइम, जिसको हम बोलते हैं JIT, JIT, which tell us that a production and inventory control system in which materials are purchased and units are produced only as needed to meet the actual customer demand। इसको अगर आसान भाषा में अगर मैं बात करूं या आसान लफ्ज़ों में इसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूं, ये बेसिकली JIT जस्ट इन टाइम से हमें ही थोड़ा आइडिया हो जाता है कि क्या चीज़ ये बोलना चाह रहा है।
प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, जो भी हमारे पास कोई प्रोडक्शन हो रही है किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी प्रोडक्शन हाउस के अंदर, लाइक प्रोडक्शन हाउस, लाइक उसकी बात नहीं कर रहा, सिनेमैटिक की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो उसकी जो इन्वेंट्री होगी, कंट्रोल सिस्टम इन विच मटेरियल आर परचेज, उसके अंदर उतना ही मटेरियल को परचेज किया जाएगा एंड यूनिट्स आर प्रोड्यूस, उतना ही परचेज मटेरियल किया जाएगा, उतने ही यूनिट्स को बनाया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा एज द नीड टू मीट एक्चुअल कस्टमर डिमांड। जैसे कि एक कस्टमर मेरे पास आता है, एक मिसाल है कि लाइक मेरे पास एक कस्टमर आता है, मुझे बोलता है कि मुझे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं, लाइक मुझे 50 वो बनाने हैं, 50 शर्ट्स बनानी है, ठीक है। कस्टमर की डिमांड है 50 टी शर्ट्स की, तो मैं डिमांड के मुताबिक मैं उसकी इन्वेंट्री को सेट करूंगा। इन्वेंट्री सेट करने से पहले मैं उसकी इन्वेंट्री परचेज करूंगा, उसकी इन्वेंट्री सेट करूंगा और उसी 50 की मुताबिक ही मैं उसकी डिमांड को बना के, उसके रॉ मटेरियल खरीद के, उसकी डिमांड के मुताबिक कस्टमाइजेशन करके जो भी उसकी डिमांड होगी शर्ट्स के अंदर मैं करके उसकी फुलफिल करके उसको मैं डिलीवर कर दूंगा। मैं उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल या कोई भी चीज रॉ मटेरियल नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जस्ट इन टाइम मुझे ये बताता है कि मेरे पास जितनी डिमांड होगी उसी के मुताबिक मैं उस चीज को फुलफिल करके उस डिमांड को पूरा कर दूंगा। सही है। और मैन्युफैक्चरिंग करके उस डिमांड के मुताबिक इन्वेंट्री परचेज करके उसको बनाकर मैं उसको डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, ये चीज मुझे जस्ट इन टाइम से पता चलता है। सेकंड बात करते हैं कि लाइक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, जिसको बोलते हैं हम TQM, एन अप्रोच टू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट दैट फोकसेस ऑन सर्विंग कस्टमर्स एंड यूजेस टर्म्स ऑफ फ्रंट लाइन वर्कर्स टू सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। मतलब कि आसान भाषा में, आसान अर्थों में बात करूं तो मैं क्या, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या बोल रहा है, एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रही होती है। कंटिन्यूस मतलब बार बार, हमेशा से एक जो चीज चल रही है उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। एक TQM को अगर मैं एक और काइजन की चीज होती है, काइजन जो जापानीज टर्म जो इस्तेमाल हो रही थी, उसके अंदर भी हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चाह रहे होते हैं ऑन कस्टमर and focus on serving customers and use terms of frontline workers। अच्छा, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रही होती है और जो हमें फ्रंट लाइन वर्कर्स को सिस्टमैटिकली उनकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी उनकी मुश्किलात आ रही होती है, उनको सॉल्व करने के लिए जो हम चीज़ें अप्रोचेस कर रहे होते हैं, जो चीज़ों को हम सॉल्व कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, कोई भी उनके इश्यूज आ रहे हैं उनको रिजॉल्व कर रहे हैं, तो दैट इज in the term we say that total quality management, जो भी क्वालिटी को मैनेज कर रहे हैं उसकी मैनेजमेंट को हम प्रॉपरली परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं प्रोसेस री इंजीनियरिंग। प्रोसेस री इंजीनियरिंग के अंदर में बोला जाता है कि लाइक एन अप्रोच टू improvement that involves completely redesigning business processes in order to eliminate unnecessary steps, reduce errors and reduce cost। प्रोसेस री इंजीनियरिंग से हमें लाइक कोई भी चीज़ हो रही है हो तो उसको लाइक एक प्रोसेस चल रहा है, एक मशीनरी चल रही है एक कंपनी के अंदर। अच्छा जी, वो मशीनरी हो गई है पुरानी, उसके अंदर बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं और उसकी वजह से काम में डिस्टर्बेंस हो रही है, तो हमने उस मशीनरी को ही रीडिज़ाइन कर दिया, उसको हटा के या उसकी जगह पे दूसरी मशीन लेके आकर उसको उस जो काम प्रोसेस हो रहा था उसको हमने रीप्रोसेस कर दिया। सही है क्या? एन अप्रोच टू इम्प्रूवमेंट दैट इन्वॉल्व कंप्लीटली रीडिजाइन। हमने उसको रीडिजाइन कर दिया प्रॉपर, शुरू से लेके एंड तक उसको हमने मतलब चेंज कर दिया। ठीक है, उसको हमने मतलब एक तरीके से न्यू लेकर आ गए, तो दैट्स कॉल्ड प्रोसेस री इंजीनियरिंग। हमारे पास लास्ट जो चीज है नंबर 4, जो थोड़ी गलती से 2 लिख दिया गया है, इसमें क्या बोला, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, TOC। क्या बोलता है भाई, अ मैनेजमेंट अप्रोच दैट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग कंस्ट्रेंट। लाइक एक मैनेजमेंट की एक अप्रोच होती है कि इंपॉर्टेंस मैनेजिंग, जो भी हमारे पास ये थ्योरी है कंस्ट्रेंट के बारे में, लाइक बताती है कि जो भी इसकी अप्रोच होनी चाहिए, एम्फसाइज कम से कम होनी चाहिए, लाइक प्रोसेस कम से कम मतलब एक लंबे प्रोसेस में नहीं जानी चाहिए, छोटा से छोटा कम एम्फसाइज होना चाहिए, शॉर्ट टर्म और शॉर्ट मतलब फॉरन क्विकली बेस पे हो जाए। सही है, एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग कंस्ट्रेंट, उनको प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। और ये बेसिकली होती कौन कर रहा होता है, मैनेजमेंट अप्रोच किसके तरीके से हो रही होती है, मैनेजमेंट की एक अप्रोच होती है।
ठीक है, ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस थी इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो हमने देख ली हैं। तो फिर अगर कुछ इसमें मेरे हिसाब से कुछ मुश्किल नहीं होनी चाहिए, और जो भी चीज़ें हैं इसको बिल्कुल आसानी से हमने देख लिया है। अच्छा, एक न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल बिल्कुल एट द एंड ऑफ द सेशन हम देखेंगे। तो फिलहाल इस चैप्टर 1 के अंदर हमने जो चीज़ें थी हमने इसको देख लिया है। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल के ऊपर हमने बात करी है, तो उसको देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और हम मुलाकात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। और मुझे इजाज़त दीजिए। प्रोफेसर मोहम्मद हसन खान को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अंदर और भी डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। आप इन कोर्सेज़ के अलावा भी, इस कोर्स के अलावा भी डिफरेंट कोर्सेज़ को आप देख सकते हैं, उसको अंदर लर्निंग कर सकते हैं। और जितने भी कोर्सेज़ हैं ये मेरे अपने रीडिज़ाइन किए हुए हैं, मैंने ख़ुद इनको इस पर वर्किंग करके इनको मैंने बनाया है, और पूरी मेहनत करके इन चीज़ को मैंने आप लोगों के लिए जितनी हो सकती थी मैंने इसको आसानी करके और आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करी है। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।